All right, everyone. So, welcome back to my channel. This is the second video on this channel. Uh, Thank you for your love and support. This channel इतना टाइम अभी नहीं हुआ है इसको बने हुए, so we'll keep on posting more and more content. Meanwhile, you people need to keep following. Please share and comment on the videos. It's gonna help a lot. So, let's get back to the video. नाउ आजकल सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह एक बहुत अच्छा ट्रेंड फॉलो हुआ है कि योर फर्स्ट जिम फोटो, योर लास्ट जिम फोटो, द रिसेंट जिम फोटो, हाउ आई यूज्ड टू लुक 2 years ago, how I'm looking now, which is perfectly fine. But the thing that is not fine, and it's actually not very fine, is these transformations, the social media transformations that people show, that I transform in 30 days from here to here, in 2 months I transfer from here to here. People are actually going from being skinny to being looking like Jeff Seed or like people, other fitness models, and they say that they did it in 1-2 months, or like in this small time frame. This is actually setting up unrealistic expectations for all the beginners out there, all the intermediates out there, and even some of the advanced natty lifters, because it's a cause of disappointment for them, as people are now expecting, या जो भी नए लोग उनको देखते हैं, these transformations को नए लोग देखते हैं, they are like 2 महीने में इतना ट्रांसफॉर्मेशन, अरे भाई. Now people ask me कि ब्रो तेरे को कितना साल हुआ करते हुए? अप्रॉक्सीमेटली यार 3.5-4 साल. ब्रो 3.5-4 साल में बस इतना ही बना. हाँ, अब उसको देख जाके साला 3 महीने में इतना अच्छी बॉडी बना के बैठा है. ऑलराइट, this is one of the most common conversation that a natty lifter or the people who do not use any kind of PEDs, that is performance enhancing drugs or steroids. अब इसका reason क्या है? The social media transformation. They are actually not realistic transformation, they are just social media transformation. And one of the most essential thing to consider about this transformation is the time frame. People can go from here to here, it's not a bigger deal. What is a bigger deal is the time frame that they show, that they did it in 1 month, 2 months, 3 months. आजकल तो बहुत ही ज़्यादा this thing is going on, and because it's very manipulating. Like people expect faster results, people want faster results, and they also watch content creators or content providers या जो भी इस तरह के उनको ट्रांसफॉर्मेशन ट्रूथ्स या फिर जो भी इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन उनको दिखाता है. दिस इज व्हाट वी कॉल है सोशल मीडिया मैनिपुलेटिंग ऑल्सो. अब इस चीज़ को देखने के बाद व्हाट हैपन्स इज, जितने भी लोग, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि जो लोग एक्चुअल में अच्छी फिजिक पाना चाहे सिर्फ वही, रादर जितने भी लोग उनको देखते हैं, वेदर दे आर मिडिल एज और अबव देन दैट, दे गेट अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. इस टाइप ऑफ कंटेंट क्रिएटर्स वो उनके पास जाते हैं, अपने पैसे देते हैं, एंड दे put in the amount of work, put in the amount of resources into it, and they don't get expected results. Why? Because they don't actually know the truth behind the transformations जो ये कंटेंट क्रिएटर्स दिखा रहे होते हैं. ऑलराइट, सो आपको नहीं पता कि वो जो ट्रांसफॉर्मेशन पोस्ट हुई है, द पिक्चर दैट इज बीइंग पोस्टेड, या एक छोटी सी क्लिप जो दिखा रहा है, उसको कितना टाइम लगा. व्हाट ही शोइंग इज 30 days और 40 days, कुड बी एक्चुअली 1 year, कुड एक्चुअली बी 6 months, कुड एक्चुअली बी लाइक ज़्यादा या कम बहुत आसानी से हो सकता है. एंड दिस इज व्हाट द पीपल डोंट अंडरस्टैंड. एडिटिंग नाम की एक चीज़ होती है, वीडियो एडिटिंग होती है, जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हो, कहीं से भी किसी को कुछ भी बना के कुछ भी दिखा सकते हो. तो हाउ कैन यू इवन लाइक ट्रस्ट दिस मच रियली और ट्रस्ट ब्लाइंडली ऑन दिस थिंग्स कि हाँ यार यहाँ से यहाँ गया 30 दिन बोल रहा है, 30 दिन में ही हुआ होगा. क्यों? बिकॉज आपके माइंडसेट में ये फिट हो गया कि 30 दिन में हो जाता होगा. यार सभी कर रहे हैं, मैं भी करता हूँ. इवन इस फिजिक्स तक आने पे अगर उसको 6 महीने भी लग रहा होगा, he'll say simply 3 महीना लगा यार. क्यों? बिकॉज लोग यकीन करने लगते हैं, पीपल बिलीव दीज थिंग्स. लोगों को लगता है कि हाँ यार सभी करते हैं, 3 महीने में हो गया होगा, हम भी करते हैं. और
naturally without of any chemicals or steroids. अब इस वजह से एक्चुअल में क्या होता है, जो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो इतनी हाई हो जाती हैं कि जब 3 महीने में उनको उसकी 50% भी रिजल्ट्स नहीं मिलते, लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं एंड दे लाइक हे यार तुमसे नहीं हो रहा, तुम्हारे बस की नहीं है, ऐसा नहीं होगा, ये वो एंड ऑल. स्टॉप ट्रस्टिंग द रियल कोचेज दैट कैन दोज हु कैन एक्चुअली हेल्प. तो यार अब एक चीज़ देखो, इसी को देखने के बाद, इसी ट्रांसफॉर्मेशन जो ये ट्रूथ चल रहा है, इसी को देखने के बाद आप डिसाइडेड आई एम ब्रिंगिंग अ 3-month ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज. ओके, 3-month ट्रांसफॉर्मेशन. दिस इज मी पोस्ट कोविड. ओके, कोविड के बाद से दिस वॉज मी. I lost most of my gains. Okay, it wasn't like I was working out, but इतना efficiency नहीं था, इतना intensity नहीं था. It was just at home workouts जो मेरे थे वो मैं कर रहा था. 10-15 kg डम्बल्स था मेरे पास, उनसे जो भी जितना हो रहा था. डाइट प्रॉपर नहीं था. उसके now this is how I was looking post COVID. यहाँ से I've started, जब से जिम खुले अभी I guess upon 1 महीना ही हुआ. I took my physique from here to this. Okay. And I don't think this is too much of a difference. Okay, this is just a simple fat loss journey. I have been working out from past 3 to 3.5 years and अच्छा मेरा मसल मेमोरी था, अच्छा I had pretty good I have pretty good knowledge कि न्यूट्रिशन कैसा रखूँगा मैं अपना डाइट, अपना वर्कआउट प्लान कैसा रखूँगा, सब कुछ. And this was 30 days, which is not much. Mostly it is the fat loss journey that I can say. Or I lost somewhere around 4 kgs and I gained good amount of muscle mass which I used to possess before the COVID. इसके बाद I decided that I'm gonna put a transformation journey कि for the beginners. This physique is this is nothing. Most of the beginners look like this only. Okay, so इस physique को आगे कैसे लेके जाएं? तो that is what I'm trying to do. 3 महीने का transformation journey that I'm bringing. Every day I'm posting it on Instagram, daily updates, my workouts, my मील प्लान्स, जो कि मैं अभी तक तो इंस्टाग्राम पे ही डाल रहा था, बट नाउ आई स्टार्ट पुटिंग इट ऑन द यूट्यूब ऑल्सो, ताकि आप लोग देख सकें. अब मैं बता दूं कि आई वर्क फ्रॉम 8 to 5 इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. जितने भी मेरे फार्मा वाले बैकग्राउंड वाले लोग होंगे आसपास, दे अंडरस्टैंड हाउ हैक्टिक इट इज़ टू एक्चुअली फार्मा में काम करके, बिकॉज शिफ्ट्स ऐसी रहती हैं, टाइमिंग कोई फिक्स नहीं होता है, प्लस पता नहीं बस बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक होता है. इट्स लाइक 8 घंटे का 12 घंटा यू हैव टू वर्क, समटाइम्स इवन मोर, समटाइम संडेज भी जाना होता है. तो इट्स लाइक कि मील प्लान करना है, मील बनाना है, वर्कआउट के लिए जाना है, रेस्ट भी पूरा चाहिए, सप्लीमेंटेशन, फाइनेंशियल्स, एवरीथिंग यू हैव टू मैनेज. एंड दैट इज एक्चुअली व्हाट रियलिस्टिक इज, दैट everybody have some barriers, everybody have limitations. सबके पास इतना खुला नहीं रिसोर्सेज होते हैं. एंड दैट इज व्हाट आई एम शोइंग कि how can you actually manage things, how can you actually bring about the best of you even if you have limited resources in respect of time, money as well as your efforts. तो यहाँ पे I will show कि कैसे आप कर सकते हो for office goers, for students also जिनके पास टाइम नहीं है. एंड आप प्लीज़ फॉलो करिए, लुक आउट कि how I'm doing it. I'll keep posting on YouTube as well as on Instagram. There will be no use of any kind of PDs. And to be true, आप लोग खुद मेरी जर्नी को देख के 3 महीने की ये नहीं बोलोगे that he used something or not, because इतना कोई much of a difference नहीं आता in 3 months. The 2 things that I'll be focusing during this journey is strength gaining, strength build करना है अच्छा, and muscle gaining. दोनों एक साथ करेंगे and we are not concerned कि हमें abs चाहिए. Okay, एब्स का कॉन्सेप्ट जितना ज़्यादा आप दिमाग से निकाल देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि बिगिनर्स के लिए आप एब्स के बजाय लुक आउट टू पुट ऑन सम गुड मसल्स. न्यूबी गेन्स आपको आएंगे तो लुक आउट टू पुट ऑन सम गुड अमाउंट ऑफ मसल, गुड अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ. एब्स का आप बाद में देखिए, और लेट्स सी वेयर वी कैन टेक इट इन 3 months. अच्छे नंबर्स तक जाएंगे. राइट नाउ माई डेडलिफ्ट इज अप्रॉक्सीमेटली 135 to 140 kgs. आई एम बेंचिंग एट अराउंड 90 to 95 kgs. And squat is somewhere around 110. लास्ट वीक PR जो हुआ था. आई नो दिस नंबर्स आर क्वाइट, मतलब एक बिगिनर से तो काफ़ी ज़्यादा हैं, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टिमुलस दैट यू कैन गिव. ओके, नंबर्स कैन बी रिलेटिव फॉर एवरीवन. मेरे लिए अगर 110 है, आपके लिए हो सकता है 60 हो, बट
द स्टिमुलस इट्स प्रोग्रेसिव ओवरलोडिंग वी आर डूइंग इट, हमारी बॉडी से हम ज़्यादा लोड दे रहे हैं देन द लास्ट टाइम, बॉडी ग्रो करेगी ही करेगी। ऑलराइट, विल बी फोकसिंग अपॉन न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन होना चाहिए, अच्छे अच्छे वीडियोज आई एम गोना ब्रिंग, ओके। सो देयर विल बी नो BS, आई नॉट से कि चने खा लो ये खा लो, नो। एक बहुत ही रियलिस्टिक सी मैं लाऊंगा, जो भी कुछ लाऊंगा न्यूट्रिशनल प्लान, डाइट प्लान, जो कि हर कोई फॉलो कर सके विद एक्चुअल फैक्ट्स, व्हाई यू नीड इट, हाउ यू कैन अचीव इट, एंड आई ऑल्सो टेल यू सम टिप्स इफ़ यू डोंट हैव द मनी, कैसे आप अपना बजट प्लान कर सकते हैं, आप अपनी टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं अलॉन्ग विद द ऑफिस, सो दैट कुछ भी हैम्पर नहीं होगा। Alright, so all I want from you is to share this video, support me and this channel and this journey.